Palm Sunday. What is the meaning of Palm क्या Sunday? अर्थ है पाम संडे? Palm Sunday. ये प्रश्न है आप सबके लिए। We're celebrating Palm Sunday आज हम today. पाम संडे मना You रहे can हैं। see the decoration. You हम can see in the hymn, it changes, Hosanna, Hosanna, everybody sing, Hosanna. Have you reflected what is Hosanna? होसाना का अर्थ क्या है? Or some people are thinking Hosanna, you are thinking Hosanna, Hosanna. What do you think of the meaning? एक बंदा होसाना बोल रहा है, आप सब भी You're होसाना supposed to बोल know रहे हैं, the अर्थ meaning क्या as है? a Christian. If they ask you what is Hosanna, कोई what हमसे is, पूछ ले कि आप होसाना गा रहे हो, होसाना का अर्थ क्या है? as a Christian, what एक is? मसीही के रूप में क्या अर्थ है इसका बताइए? You say, oh no, the hymn, why are they singing Hosanna? And you say, yes, what is Hosanna? What is Palm Sunday? We are Christians. We have been here for 10 years. We have been here for 15 years. This is the things that we in the Bible we sing every year and year. What is Hosanna? What is Palm Sunday? What? To take the name of Jesus. The name of Jesus is fine. Like sometimes there is some questions that I want. Like I like the question that my auntie answered last time. The question, the answer is still touching to me today. And I always pray that what he answered, that God will also visit. Because there are some answers that you give that the preacher will never ever forget in his life. Amen. तो कई बार ऐसा प्रश्न कोई पूछता है कि वो हमेशा तक याद रहता है, प्रचारक भी नहीं पूछता कि क्या प्रश्न किसी ने पूछा था। Palm Sunday, yes, तो पाम संडे का क्या अर्थ है? but not exactly. But the problem is that if you have pen, you write down. अगर आपको नहीं भी पता कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास पेन होगा, उस पेन को निकालें और लिखें। If you have your phone, you can use your notepad. If you don't have, you can open your brain. Well, okay. परमेश्वर हमारे को पाप से दूर करना, तो उसको ज़्यादा से पहले भगवान से आए। So Jesus Christ was going towards the cross. So before going to the cross, he walked and everybody started glorifying his name. Amen. It says that. Yes, it's that. But I want you to know this. हम चाहते हैं कि आप इस चीज को जानें। The Palm Sunday that you have, these three that you have, the Palm Sunday जो हम पाम संडे बनाते हैं, is kind of a sign given to us. ये एक तरह का चिन्ह है जो हमें दिया गया। You know, sometimes we can give information through signs. कई बार हम अलग-अलग चिन्ह और जानकारियां दे सकते हैं। I can talk to you by blinking my eyes on you. कई बार जरूरी नहीं कि मैं अपना मुंह खोलूं, लेकिन अपनी आंखें झपकाकर भी मैं आपसे बात कर I सकती can हूँ। look at you and make my eyes like this. I'm talking to you, I'm giving you a sign that something is happening. तो मैं सिर्फ आंखें झपकाकर भी आपको कुछ कन्वे कर सकती हूँ अगर मुझे आपको कुछ बताना है। If I want you to say no in the answer, I can blink my both eyes so that when you want to answer, I want you to say no. But I never speak a word. जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि आप किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले, तो मैं अपनी दोनों आंखें ऐसे करूँगी तो मुझे कि हाँ ये चाहती है कि मैं ना बोलूँ। The palm is a sign to us Christians. तो हम मसीहों के लिए पाम जो है वो भी एक तरह का चिन्ह है। Palm Sunday. Palm Sunday initially means पाम संडे का अर्थ क्या है? that Christ himself कि यीशु खुद can no longer be accessed, can no longer be seen face to face. कि अब से यीशु को सामने सामने आप नहीं देख सकते। But Palm Sunday marks the beginning that when Christ will be accessed by the Spirit. लेकिन अब यीशु को आत्मा में देख सकते हैं। I don't know you understand. I'm going to still give you an example. एक उदाहरण देते हैं। Palm Sunday marks the beginning when Jesus Christ said, I have been on earth for some time. तो यीशु ने कहा कि जैसे कि पाम संडे इस चीज की शुरुआत है कि यीशु ने कहा कि अभी तक तो मैं धरती पर तुम्हारे सामने रहा And only limited people can be able to और access. कुछ ही लोग ही मुझ तक पहुंच पाए हैं। When Jesus comes to a place, जब यीशु आए the crowd becomes so much. तो इतनी भीड़ हो जाती थी, Not everyone could be able to access Jesus at तो the same time. इतनी भीड़ के अंदर सब लोग यीशु के करीब तक नहीं पहुंच पाते थे। Many people are being prevented from seeing him. बहुत सारे लोग भी इतनी भीड़ में यीशु को देख तक नहीं पाते थे। He was able to heal only few people. वो धरती पर आके कुछ ही लोगों को चंगा करके जा पाए, सबको नहीं कर पाए। But Jesus said,
पर यीशु ने कहा it's time कि अब वो समय है to transform कि अब मुझे बदलना है, from analog कि अब जो मैं था उससे अलग, to digital. मतलब कि जैसे पहले कोई चीज आपके हाथ में होती है अब This is डिजिटल हो the जाती है। time to transform ये समय है बदलने का। from offline to online. जैसे आप पहले ऑफलाइन थे, आप ऑनलाइन सब तक पहुंच सकते हैं। It is the time to transfer from non-digital to technical world. जैसे कि एक आप पहले नॉर्मल दुनिया में होते थे, टेक्निकल हो जाते हैं, मतलब फोन और लैपटॉप्स का यूज करने लगते So हैं। the beginning of that transformation तो जब ये बदलने की शुरुआत होती है, started with palms. वो पाम संडे से यीशु की शुरुआत होती है। I don't know you understand what I'm doing. Yes. I don't know you क्या आपको understand समझ what में आ रहा है I'm कि हमारे भाई क्या बता रहे हैं? Palm Sunday marks the beginning of an end. ये पाम संडे एक शुरुआत थी, एक अंत की शुरुआत थी, It is the beginning of the Holy Week. कि एक पवित्र हफ्ते की शुरुआत थी, It is the day that Jesus took that decision कि ये वो हफ्ता था जब यीशु ने निर्णय लिया that I am going offline, then I'm going to कि online. अभी तक तो मैं ऑफलाइन का कुछ लोगों तक ही सब बात कर पाता, लेकिन अब मैं ऑनलाइन मतलब सब लोगों की पहुंच में आ जाऊंगा। Whether you are in Hyderabad, you access me. अगर आप हैदराबाद में भी हो तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, Whether you are in America, you access me. अगर आप अमेरिका में हैं तो भी मुझ तक पहुंच सकते हैं, Whether you are in London, you access me. अगर आप लंदन में भी हैं तब भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। If this was the class of Jesus, अगर ये यीशु का हिस्सा था if Jesus was online here, कि यीशु अगर यहाँ पर होते you can connect Jesus from anywhere you are. तो आप सोचिए कि आप कहीं पर भी हो और यीशु अगर ऑनलाइन हो तो हर बंदा उन तक पहुंच सकता And है। those days that people will be crowded, everywhere will be full. People will not be allowed to see Jesus. क्योंकि उस समय इतनी भीड़ होती थी तो हर कोई बंदा यीशु तक नहीं पहुंच पाता, ना ही देख पाता था। Where people will wait 40 days and 40 nights to see Jesus. लोग 40 दिन इंतजार करते थे, काश हम यीशु को देख पाए। That is the beginning of that event that Jesus took called the Palm Sunday. तो पाम संडे वही दिन है जब यीशु ने ऐसा परिवर्तन हुआ कि पहले वो कुछ लोगों तक सीमित थे, लेकिन अब सब तक पहुंच पाएंगे। Or we can say the Palm Sunday is the foundation day. तो पाम संडे को हम ऐसा नींव का दिन भी कह सकते हैं जब हर चीज की शुरुआत होती है, The day that the foundation is being laid. कि जहां पर जो नींव थी वो तैयार की गई। The day that Jesus took that decision. जब यीशु ने ये निर्णय लिया, That is called the Palm Sunday. उसे पाम संडे कहा गया। It's called, it means the beginning of the Holy Week. इसे कहा जाता है, ये जो पूरा हफ्ता है ये पवित्र हफ्ता कहा जाता है, That is called Palm Sunday. इसको पाम संडे कहलाया Do है। you understand what I mean? क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या बता रहा So है? when you carry this जब आप इसको लेकर जाते हैं and somebody asks you, और कोई आपसे पूछता है you tell them that Palm Sunday is the beginning of the end. कि पाम संडे शुरुआत है एक अंत की, It marks the day that Jesus laid the foundation ये वो दिन है जब यीशु ने नींव को तैयार किया that you and I will be saved. ताकि आप और मैं बच पाए। Hosanna, Hosanna. होसाना जब हम गाते हैं, Many words, these words have been used for several times. बहुत बार इस शब्द का हम इस्तेमाल Can करते हैं। somebody tell me what is Hosanna? क्या कोई इसका अर्थ बता सकता है? Savior. Yes. Yes. 90. Hosanna. होसाना का क्या अर्थ है? Hosanna. Hosanna means save us. Save us. कि हमें बचाओ। Yes. Save us. Jesus. यीशु, Yes. Jesus save us. कि यीशु हमें बचाओ। Hosanna. होसाना, We have been using this word for a long time. This is the time we master any word that you don't understand. You check it out. I'm a Christian. I have been hearing this word several in my time. Hosanna. What is Hosanna? आप एक क्रिश्चियन होने के नाते ये शब्द शायद सालों से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन अब वो समय है कि अगर कुछ शब्दों का अर्थ हमें नहीं पता, मसीह होने के नाते, तो उनको ढूंढो, उनका मतलब पता करो। Amen. Amen. The Palm Sunday. कि पाम संडे, Let's see what God has for us. देखते हैं परमेश्वर के पास क्या है आज हमारे लिए। This Palm Sunday was something that was said before Jesus Christ came on तो earth. ये एक ऐसा दिन है जो यीशु के पैदा होने से पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा बता दिया गया था। So the Palm Sunday is called a prophecy fulfilled. तो जब पाम संडे को एक ऐसा दिन कहा जाता है जिस दिन भविष्यवाणी पूरी हुई थी, It was said by the prophet of God, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा कह दिया गया था, Prophet Zechariah. जकरिया के द्वारा।
Zechariah 9 पूरे verse 9. जकरिया की किताब 9वां अध्याय का 9वां वचन। Zechariah 9 verse 9. Okay. Prophet Zechariah. So I can find this thing as well. It's very difficult. Second last book of the पुराने नियम की दूसरी आखिरी किताब है ये, मलाकी से पहली किताब जकरिया 1102। Zechariah 9 verse 9. Just before the book of Malachi। Zechariah 9 verse 9. Okay, read. जकरिया का 9 का 9 पढ़ते हैं। हे सिय्योन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन। Amen. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a cloak, the foal of a donkey. Amen. This is just a prophecy of what is about to happen. ये सिर्फ भविष्यवाणी थी जो होने वाला था Jesus Christ, कि यीशु मसीह every of the event that involved Jesus Christ was prophesied. जो भी चीज यीशु मसीह के जीवन में हुई उसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणियां हो चुकी थी। The coming of Jesus was prophesied. यीशु का आना भी भविष्यवाणी में बताया गया था। The death of Jesus was prophesied. यीशु की मृत्यु भी भविष्यवाणी की The गई। birth of Jesus was prophesied. यीशु के जीवन का हर एक हिस्सा भविष्यवाणी की And गई it came to fulfillment. और ये चीज पूरी हुई। That is to show that He's a true God. ये Amen. दिखाने के लिए कि उनके भविष्यवाणियां हुई थी क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर हैं। And it's different between when you bet. Bet is you are not sure. जब आप किसी से शर्त लगाते हैं तो इसका मतलब आपको पूरा विश्वास नहीं होता है। Some people will say, I bet. कई लोग कहते हैं अरे ये पक्का होगा। Bet means you are not sure of what you are saying. मतलब कि अब पक्का नहीं कि कहीं तो एक 99% है कि हाँ ये चीज होगी, लेकिन 1% डाउट तो होता You है। can win and you can आप lose. जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। But when you say it will happen this way, लेकिन आप कहते हैं नहीं ये ऐसा ही होता है, means you talk with authority. तो मतलब पूरा अधिकार से बोलते हैं। And that is to show the truth in what you are saying. तो इसका मतलब ये दिखाता है कि आप जो बोल रहे हैं आपको पता है ये सत्य है। So the birth of Jesus Christ was based on truth. तो यीशु मसीह का जो जीवन है हर एक चीज सत्य पे आधारित है। And everything that has to do with Jesus Christ is based on truth. जो भी यीशु से जुड़ी हुई चीजें थी वो हर एक चीज सत्य पे आधारित थी। Palm Sunday represents the symbol of victory, triumph and peace. तो पाम संडे क्या दिखाता है? विजय, मतलब कि जो जयवंत हो जाते हैं उसके ऊपर। And also it represents the symbol of eternal life. ये भी दिखाता है कि जो अनंत जीवन आपको मिलता है, That Jesus Christ conquered the power of death. कि यीशु मसीह ने मृत्यु के सामर्थ्य पर विजय पाई, So that we can be able to live. ताकि हम जी पाए। Let's go to Luke chapter 9 verse 38. लूका 9 का 38। Luke chapter 19 verse 38. लूका 9 का 38। Luke chapter 19 verse 38. हम पढ़ते हैं लूका 9 का 38। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसे मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लेता है, उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ता है। Amen. Say, blessed is the King who comes in the name of the Lord. 19, yeah. 19 verse 38. It said, blessed is the King who comes in the name of the Lord. लूका 9:19 का 38। Peace in heaven and glory in the highest. धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। आमीन। Amen. He said, blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. This is where the symbol of peace and victory of Jesus Christ was given. यहीं पर यीशु की शांति और यीशु की सफलता हमें बताई गई है।
As I was saying, that Palm Sunday is the time that we transform from analog to digital. तो जैसे कि मैंने भाई ने बताया कि पाम संडे वो दिन होता है कि जब हम ज्यादा सीमित होते हैं, लेकिन हम जब सबके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, तो वैसे यीशु को बताया गया। So let's go to Matthew chapter 21 from verse 1 to 11. मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय का 1 से लेकर 11 वचन। The triumphant entry of Jesus Christ. Matthew chapter 21 from verse 1 to 11. मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक। Yes, sir. जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु के 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत तुम्हें भेज देगा। यह इससे हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चों को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गए। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पे बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग पे बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन। Amen. He called the triumphant entry of Jesus Christ. इसको बताया गया है यरूशलेम में विजय प्रकाश This प्रवेश। is the day that Jesus Christ have decided to set us free from the bondage of तो Satan. ये वो दिन होता है जब यीशु ये निर्णय लेता है कि आपको और मुझे शैतान के हाथों से बचाएगा। Jesus Christ have to take this decision. यीशु को ये निर्णय लेना ही पड़ा, But it was not easy for पर him. ये आसान नहीं था। Everybody was rejoicing. पर हर कोई आनंद मना रहा था, But only Jesus knew what he's about to go through. लेकिन यीशु को तो पता था कि अब किस चीज की शुरुआत हो As रही you can see that everyone is screaming Hosanna in the है। हर कोई house. चिल्ला रहा है होशाना होशाना, But Jesus knows that he's going to go through pain. लेकिन यीशु को पता है कि अब से मेरे दर्द का समय शुरू होने वाला है। But you will never see it in the face of Jesus. लेकिन आपको यीशु की शक्ल पर वो दर्द कभी नजर नहीं आता। But no one understood Jesus Christ. लेकिन कोई भी यीशु को समझ नहीं पाता। Everyone will see the laughing face of Jesus. हर कोई यीशु के शक्ल पे मुस्कुराहट ही देख रहा है। They saw Jesus on the donkey riding. वो कहते हैं, अरे यीशु गधे के बच्चे पे चल रहा है, बड़ा खुश दिख रहा है। They said the prophet has come. चलो भविष्य But nobody आ knew गया। the heart of Jesus Christ. लेकिन किसी को पता नहीं था कि यीशु के मन में क्या चल रहा है। Nobody knew what Jesus was about to suffer. उन्हें नहीं पता कि यीशु को कल से क्या होने वाला है। Jesus knew that he will be crucified. यीशु को तो पता था उन्हें क्रूस पे चढ़ाया ही He knew जाएगा। that he will be tortured. उन्हें पता था कि उनको टॉर्चर किया जाएगा। But I didn't see Jesus having a frown face. लेकिन फिर भी हम यीशु की शक्ल पे इन चीजों को नहीं देखते हैं। I think Jesus Christ, start to be feel so afraid. हम नहीं देखते कि यीशु की शक्ल पे डर हो। I didn't see Jesus lost composure. यीशु को कभी भी किसी चिंता नहीं नजर आई। Jesus didn't even let anybody to know what he's about to go through. उन्होंने किसी को पता लगने तक नहीं दिया कि कल से मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। Now today world, everybody, when we are in pain, everybody knows. लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर हमारे जीवन में चिंता होती है हम सबको दिखा देते हैं। People tend to read our next actions. लोग हमारी शक्ल देख के बता देते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। Everybody knows when we are not happy. अगर हम खुश नहीं हैं तो लोगों को पता लग जाता है। When we cry whole day night, when we see you in the morning, we know you cried. अगर आप पूरी रात रोए हैं तो सुबह उठ के आपकी शक्ल पे पता होता है लोगों को अच्छा है पूरी रात रोकर ही आया है। But Jesus used तो यीशु joy. लेकिन यीशु ने आनंद दिखाया, आनंद दिखाया। Imagine you, आप सोचे, you know that in 1 week you will be hanged. आप सोचे कि अगर आपको पता हो कि एक हफ्ते बाद आपको फांसी पे टांग You देंगे, were sentenced to death. आप मरने वाले हो एक And हफ्ते you बाद, knew that in 1 week you will die. आपको पता है ये एक हफ्ता है मेरे पास, Many people will lose appetite. तो कई लोग तो खाना खाना छोड़ देंगे, They will be in summer mood. दुखी दुखी रहेंगे, They will not even want to talk to anyone. किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। But nobody knew लेकिन किसी को पता नहीं था that this is
what was about to happen to him. कि यीशु के जीवन में क्या होने वाला है। People were asked, is he not that man that was celebrating? लोग अगले दिन कहेंगे अरे कल तक तो ये बड़ा Is खुश he था। not that man that was on donkey and multitude of people followed him? अरे ये तो वही आदमी है जो उस दिन गधे के ऊपर चल रहा था, बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। Is he the one being crucified ये वही है जो क्रूस पे भी टंगा हुआ है। after a few days? कुछ दिनों बाद That was what we didn't understand about Jesus. यही वो चीज है जब यीशु के बारे में समझ नहीं पाते। But because he knew that he need to take this adventure for his people, लेकिन यीशु को पता था कि अपने लोगों के लिए उनको ऐसा करना ही है। he knew that this is what I have to sacrifice for my people. उन्हें पता था कि अपने लोगों के लिए मुझे बलिदान देना ही है। I chose it उन्होंने इसको चुना and I will not complain. और मैं शिकायत नहीं करूंगा उन्हें चुनने के बाद। Jesus was having this load without complaint. यीशु हर एक चीज में आगे बढ़ रहे थे बिना शिकायतें To करे, tell me who Jesus is. ताकि वो बता पाए कि यीशु है कौन। We will carry small load. Even if we don't have any money, अगर हमारे पैसा नहीं होता everybody will not. Everybody will hear our voice. तो हर किसी को हमारी बातों से पता चलेगा, अरे पैसा We don't नहीं है, have पैसा money. नहीं। हम सबको गाना शुरू कर देंगे If पैसा somebody is नहीं है। offending us, everybody will hear that somebody is against us. अगर हमें कोई परेशान कर रहा है, पूरी दुनिया को बता देंगे कि भाई ये इंसान मुझे परेशान कर रहा है। Jesus never complained. लेकिन यीशु ने शिकायतें नहीं करी। He knew that the only solution was between him and the Father. मुझे पता था कि कोई भी चीज का हल सिर्फ मैं और मेरे पिता के बीच में से ही आ सकता है, लोगों से When नहीं the आ सकता। Jews see Jesus जब Christ, यहूदियों ने यीशु को देखा, he never went to court. He didn't go and file petition. वो लड़ने नहीं गया। He didn't call police against those people. उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया, यहूदी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, पुलिस आ जाओ। Jesus Christ didn't use his power. यीशु ने अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किया। He will use his power to get what he wants. वो चाहते तो उससे हर कुछ चीज पा सकते थे। You see the war in Ukraine and Russia. आप देखिए यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही है। Russia has the power. रशिया के पास सामर्थ्य So है I'm afraid they will use it. और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। But Jesus has the power. यीशु के पास भी सामर्थ्य He है। decided to die than to use his power. उन्होंने कि ठीक है मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं करूंगा। He would have commanded those people at the वो time. बोल सकते थे जब लोग उन्हें पकड़ने आ रहे थे। He would have said, I will not sacrifice my life on the वो cross. बोल सकते कि मैं क्रूस पे क्यों मरूं, मैं तो नहीं मरूंगा। But he knew पर उन्हें पता था what he was doing. कि वो क्या कर रहे हैं। He kept quiet. वो चुप रहे, He endured. उन्होंने सहन किया And he achieved. और उन्होंने लास्ट में पाया भी। He kept quiet. वो चुप रहे, He endured. सहन किया And he achieved it. और पाया। Many people think that we can get everything with that endurance. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बिना सहन किए उनको जीवन में कुछ मिल सकता है। Many people tend to measure the extent of the pain they are going through. कई लोग समझ नहीं पाते कितना दर्द उन्हें सहना ही How पड़ेगा। long? How long? How long? लोग कहते हैं क्यों मैं इतने दर्द में हूँ, कब I से have परेशान been praying for हूँ, 1 year, कितने 2 years. 1 साल से 2 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा। This problem has been, I have been told will not answer me. परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को जवाब ही I नहीं दे have रहे। lost all my hope. अब तो मेरी आशा ही खत्म हो गई है। Jesus didn't lose hope. लेकिन यीशु ने आशा नहीं खोई। Jesus never complained. उन्हें शिकायतें भी He नहीं knew की। one day there will be victory. उन्हें पता था कि एक बार अंत में मुझे विजय जरूर मिलेगी। He knew one day he would get to his destinations. उन्हें पता था उन्हें जहाँ पहुँचना है वो पहुँचेंगे ही। But he knew there would be obstacle on the way. लेकिन उन्हें पता है कि रास्ते में परेशानियाँ भी That's what आएंगी। we think today. We think that let there be no obstacle. लेकिन हम क्या सोचते हैं जीवन में कुछ पाने के, अरे परेशानी नहीं आनी चाहिए। If we meet obstacle on the way, God don't love us. अगर बीच में परेशानी आई मतलब परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं Because I करते। go to church, I pray every day, I shouldn't meet any obstacle. अरे मैं तो रोज चर्च जा रही हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ रही हूँ, प्रार्थना में, तो परेशानियाँ क्यों आती है मेरी लाइफ में। But God knew that obstacle is your strength. तो परमेश्वर को पता है कि परेशानियाँ ही हमें सामर्थ्य When देती है। something is blocking you, अगर कोई चीज आपको रोकती है, that is when you know your strength. तभी आप समझते हैं कि आप में कितना That is when सामर्थ्य you है। start to think how to maneuver. तभी हम सोचते हैं कि इसके ऊपर पार कैसे पाऊँ और क्या करूँ। Obstacle sometimes is very vital for our तो survival. परेशानियाँ हमारे जीवन में जरूरी है ताकि हम सीखें। Jesus Christ knew यीशु को पता था that He is going to transform. कि उनका बदलाव That होने He वाला है wants to bring a change. और ये बदलाव लाने वाले हैं। To bring a change in your life is not easy. अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बदलाव आसानी से आ जाएगा तो ऐसा नहीं होता। To move from, let's say, poverty to richness, it has to do with sacrifice. अगर आप सोच रहे हैं कि गरीबी से अमीरी तक
बिना बलिदान करके आप बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। You can't just say tomorrow I am poor and tomorrow I will be rich. आप ऐसे नहीं कह सकते कि कल तो मैं गरीब था आज अमीर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं कह सकते। If wishes were horses, beggars for ride. If everybody will wake up and think, I'm in America, you will be there. Nobody will be poor. If you wait to know, I'll be like company, you will become. अगर आप ये सोचते कि जो आप सोचेंगे वो होता जाएगा, मैं सुबह उठूं मैं लंदन में हो जाऊं, मैं सुबह उठूं मैं अंबानी बन जाऊं, तो ऐसा तो नहीं होता है। If our wishes comes to pass, अगर जो चीजें हमारी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। but it requires sacrifice. लेकिन हर एक चीज पाने के लिए बहुत बलिदान It करना requires पड़ता है consistency. और चाहिए कि हम सहन करके आगे बढ़ते चलें। Jesus never gave up. यीशु ने कभी हार नहीं मानी, Never. कभी भी नहीं। He suffered betrayal. वो परेशानियों में रहे, उनको धोखा दिया गया, He was betrayed from his own family. उनके खुद के परिवार वालों ने धोखा दिया। That's what Jesus, when you say, oh, my family, I don't trust them. No, this has been the nature of man. This has been the nature of human being. That it is not even the people that are far away is going to betray you. It will be always the person that you eat. It will be all the person that you drink. Everyone, it must come from something that is close to you. और आप देखेंगे आपके जीवन में अधिकतर परेशानियां दूर के लोगों से नहीं, लेकिन आपके घर के लोगों से ही हमेशा आएंगी। Jesus knew that the enemy was not far. यीशु को पता था कि दुश्मन दूर नहीं, He knew that the enemy is within. दुश्मन तो घर में ही So होगा। that when did he know? He said, yes, I know ताकि जब उनको बताया तो उनको पता कि हाँ मुझे पहले ही पता था that they will be against me. कि वो लोग मेरे खिलाफ होंगे। But Jesus never gave an excuse. लेकिन यीशु ने कभी भी बहाना नहीं दिया Oh, because of Judas. कि यहूदा इस्करियोती की वजह That's से, why I didn't achieve it. अरे तभी तो मैं क्रूस पे चढ़ा, I nearly achieved that. अरे मैं तो जीत ही जाते ही यहूदा बीच में आ गया But Judas betrayed me. और यहूदा ने मुझे धोखा दे Oh, दिया। Jesus said, because of my disciples. यीशु ने कभी नहीं बोला मेरे चेलों की वजह से परेशानी आई। Imagine Peter. आप सोचे पतरस के बारे में, Peter that I loved. जो शिमोन पतरस से I परमेश्वर gave Peter everything. अरे शिमोन पतरस को मैंने सब कुछ दिया He denied me 3 times. और मेरे क्रूस पे जाने के समय 3 बार उसने मुझे नकार दिया Because of Peter, I lost the opportunity. और शिमोन पतरस की वजह से मैं बहुत चढ़ गया। Excuses are our problem. हर बार हम बहाना देते हैं। We always want to find somebody to blame for our failure. हमें अपने जीवन की वजह में हमें लोगों को हमेशा शिकायतें करते हैं। Somebody is always responsible for our downfall. अगर हम कहीं पर भी गिर गए हैं अपने जीवन में या परेशान हैं, गलत कर रहे हैं, हम हमेशा दूसरे के पर इल्जाम लगाते हैं। Even if somebody kick you, you say yes. अगर कोई आपको धक्का भी मारता है, लात भी मारता है, तो आपको हाँ बोलना चाहिए। Get up and dust yourself. उठे, झाड़े और चलने And लगे keep moving. और आगे बढ़ते रहे। Jesus knew यीशु को पता था that people are there to break him down. कि लोग होंगे मेरे आसपास जो मुझे गिराने की कोशिश He करेंगे, never pointed them as an excuse. लेकिन फिर भी यीशु ने कभी उनकी तरफ उंगली उठा के नहीं बोला कि तुम ही जिम्मेदार हो। The excuse is much. Our people, my family, my mother, my father, लेकिन हम घरों में क्या बहाने बनाते हैं कि मेरी मम्मी की वजह से, पापा की वजह से, बच्चों की वजह से, कुछ my husband, my मेरे पति friend, की वजह से, पत्नी की वजह से, दोस्तों की वजह से, my landlord, my relative, मेरे लैंडलॉर्ड की वजह से, मेरे रिश्तेदारों की वजह से, my village people, मेरे गांव के लोगों की वजह से। my king. He don't want me to achieve this. वो लोग नहीं चाहते कि मैं जिसको पाऊं, इसलिए मुझे परेशान We कर रहे हैं। always have excuse. हमारे पास हमेशा बहाने तैयार रहते हैं It's get time we get rid of our excuses और ये उस समय है कि हम अपने बहानों से and keep fighting until और अब we समय है कि हम लड़ना शुरू कर दें। Amen. आमीन। The triumphant entry of Jesus कि Christ यीशु का जो एक सफल प्रवेश था, was when people were glorifying Jesus. ये वो समय था जब लोग यीशु को महिमा दे रहे थे। The people who understand Jesus was shouting Hosanna. जो लोग यीशु को समझते थे उन्होंने उनको होशाना गाना Pray दिया। for us and save us. उन्होंने बोला कि प्रार्थना करो हमारे लिए और हमें बचा लो। The prophet of God. भविष्यवक्ता, They saw Jesus as the prophet. उन्होंने देखा यीशु भविष्यवक्ता को, Jesus was यीशु there, यीशु वहाँ थे, rejoicing with them, आनंद मना रहे थे, laughing with them, हंस रहे थे उनके साथ taking up the crown, और वो क्राउन ताज लेके घूम रहे थे taking up the challenge और चैलेंज भी लेके घूम रहे थे that I will save you. कि चुनौती की हाँ All मैं you बचाऊंगा, that have followed me, कि जितने लोग मेरे पीछे all चलेंगे, you people that are shouting Hosanna with जितने me, लोग चिल्ला रहे हैं होशाना, I will never betray you. उनको मैं कभी धोखा नहीं दूंगा This my living my life, I'm going to sacrifice it for और मैं you. अपना जीवन तुम्हारे लिए बलिदान Today is the beginning of that journey. आज ही उस दिन उस सफर की शुरुआत हुई। Today is the beginning that we have packed our load and we are moving. ये उस समय है कि हम तैयार हो जाए और आगे बढ़े। Jesus was telling them, today is the day that we took off. यीशु ने कहा कि वो दिन है कि आज से मैंने शुरुआत करी We are going to land in our destination. और जो परमेश्वर ने हमें रखा है वहां तक हम पहुंच It's the पाएंगे। day that
that Jesus gave the promise, but they didn't understand. कि यीशु ने उन लोगों को वचन दिया, उसने लेकिन लोग समझ नहीं पाए। Jesus didn't speak. यीशु ने कहा नहीं, He showed them a sign of a लेकिन donkey. दिखाया, एक गधे के रूप में एक चिन्ह दिखाया। He picked up a donkey उन्होंने एक गधे को लिया and he started riding. और उस पे बैठ के चढ़ने The लगे। donkey was moving, गधा चल रहा था but he was speaking और वो बोल रहा था, to those who are intelligent. जो लोग समझदार हैं उनको, Keep reading. कि देखो Why Jesus took? क्यों यीशु ने A donkey? क्यों यीशु ने गधे का Why इस्तेमाल he किया? started riding? भाई कुछ और जानवर क्यों नहीं किया? Why he did not come and address us like a rally? क्या वो एक राजा रानी की तरह क्यों नहीं है, एक बड़ी सी प्रजा लेकर? All these politicians, BJP, सारे पॉलिटिशियन जो बीजेपी कांग्रेस के you होते see हैं, that people were full in the stadium, वो जहाँ पर भी चलते हैं भीड़ के साथ चलते हैं and they will be promising people what they will और do, लोगों को हमेशा वादे करते हैं what they will not do. कि मैं क्या करूँगा, क्या Jesus नहीं did not say, करूँगा। "I will die for you guys. यीशु ने नहीं कहा गधे पे बैठ के मैं In तुम्हारे 3 मरने वाला days हूँ। I'm going to उन्होंने ये rise. नहीं बोला कि अरे मैं कुछ दिन में मरने वाला हूँ I'm going to conquer death." और मैं 3 दिन में जिंदा हो जाऊंगा, And मृत्यु में everyone विजय will be पाऊंगा clapping at them. और तुम तालियां में जाओ, ऐसा कुछ It नहीं is बोला। not the BJP and Congress of the ये world. बीजेपी कांग्रेस की तरह उन्होंने व्यवहार नहीं किया। They just cheat us to take your vote. बीजेपी कांग्रेस हमें से धोखा देते हैं हमारे वोट And they लेके just do what they like. और वो वही करते हैं जो उन्हें अच्छा That लगता was not the pattern of Jesus. है। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। Jesus will be speaking, यीशु बोल रहे थे, but you will not understand. वो बोल लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। Sometimes God talks to you in your life when you don't understand. कई बार परमेश्वर हमसे बात तो करते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हम नहीं समझते। Sometimes Jesus gives you sign, "My daughter, my son, I am with you." कई बार परमेश्वर हमें चिन्ह देते हैं कि मेरे बेटे मेरे बेटी मैं तुम्हारे साथ में हूँ, But you don't understand. पर हम नहीं समझते Because Jesus does sometimes don't come straight way. कि परमेश्वर कई बार सीधे सीधे रास्ते पे नहीं आते हैं, He comes the other way. वो अलग तरीके से बात करते He हैं। was moving with the donkey वो एक गधे की तरह चल रहे and थे he was riding. और उन पे बैठे हुए थे And he was talking to some people they didn't understand. और लोगों से बात करते हैं कि लोगों को समझ में ही नहीं आ He was रहा। telling them, "I am heading somewhere. उन्होंने कहा कि मैं कहीं और कहीं जा रहा हूँ, I am heading somewhere. कहीं जा रहा हूँ, I am doing something for you मैं right कुछ now." कर रहा हूँ तुम्हारे लिए अभी, But many people didn't understand लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आया because he didn't come and broadcast it. क्योंकि उन्होंने आगे अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया That was what Jesus was doing. कि यही यीशु कर रहे थे। When I told you that Jesus Christ, that was the beginning when Jesus wanted to change things in our life. जैसे हमारे भाई ने बोला कि आज के दिन यीशु हमारे जीवन को बदलना चाहते थे और वो दिन आज से शुरुआत हुई थी। Let's see what Jesus was doing before. हम देखते हैं यीशु से पहले क्या कर रहे थे, Let's see what Jesus wanted to change. यीशु क्या बदलना चाहते थे, हम वो देखते हैं। Let's go to Matthew chapter 9, मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय from verse 27 to 31. Matthew chapter 9. From 27. Matthew chapter 9, from 27 to 31. मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय 27 से 31। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उसे उठाकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। Amen. This was where Jesus was heading. Understand? If you pay attention, you understand where I'm going. अगर आप This was where Jesus was heading. आप देखें कि कैसे हुआ, अगर आप समझेंगे समझ आएगा। He was on a donkey and he was riding to somewhere. वो एक गधे पे बैठ के कहीं जा रहे हैं And they couldn't understand. और लोगों को समझ नहीं आया। Look at where Jesus was आप heading. यहाँ देखिए यीशु भी कहीं जा रहे हैं। The Bible said in Matthew chapter 9 verse 27. बाइबल का वचन कहता है मत्ती 9:27 में, He said when Jesus departed from there, जब यीशु वहां से आगे बढ़ रहे थे, 2 blind men followed him दो व्यक्ति crying. उसके पीछे चले And they were saying, और कहा "Son of David, have कि mercy दाऊद के upon पुत्र me. हम पर दया करो, Son of David, have mercy दाऊद upon के me." पुत्र हम पर दया करो। I said, when he had come into the house, the blind man came to him, and Jesus said, "Do you believe that I am able to do this?" And they said to him, "Yes, Lord." Then he touched their eyes, saying, "According to your faith, let it be done to you." Jesus touched them. यीशु ने उनको छुआ, They saw Jesus उन्होंने Christ. यीशु को देखा, They believed in उस पर Jesus. विश्वास किया And Jesus healed them. और यीशु ने चंगा किया।
eyes opened. और आंखें खुल गई। That was what the Bible recorded. ये वो है जो बाइबल में लिखा हुआ है। Jesus, they saw Jesus. They went to Jesus. They were inside the house. This is not about the spirit Jesus. This was about the physical Jesus. तो अभी तो हम एक आत्मा के रूप में बात करते हैं यीशु की, लेकिन पहले हम शरीर के रूप में यीशु की बात कर रहे हैं। And who knows, this blind man, they heard about Jesus Christ 2 months back. हो सकता है कि अंधे व्यक्ति ने 2 महीने पहले यीशु के बारे में सुना हो। This blind man, maybe they took more than 1 month or 2 months to reach where Jesus हो सकता है was. जहाँ तक यीशु हो वहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों ने करीबन 1-2 महीने लग गए हों। Who knows, they started this journey from Calcutta to Delhi. उनको क्या पता वो कलकत्ता दिल्ली तक कितना दूर आए हो, We led to come and see Jesus सिर्फ Christ. यीशु को देखने के लिए। And they saw Jesus. और यीशु को देखा And Jesus healed them. और यीशु ने चंगा किया। Amen. Amen. Let's go to again John. John chapter 11. John यूहन्ना chapter का 11. सुसमाचार 11वां अध्याय खोलेंगे। We'll take John chapter 11 from 1 to 4, then 38 to 44. John chapter 11. The Gospel of John chapter 11. 11 from 1 to 4. 11 का 1 से 4। मरियम और उसकी बहन मार्था गाँव बेथानिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमीन। Amen. 1 to 4. It says, now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary, her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil, wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore the sister said to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. They said, who sent? Sister Mary sent for Jesus. कि मैरी ने बोला कि यीशु को बुलाओ। They said, go and call Jesus. मरियम ने बोला कि जाओ यीशु को बुला के लाओ। And when they saw Jesus, और जब यीशु को देखा, they said, do you know your friend Lazarus is अरे sick? पता तुम्हारा मित्र जो लाजर है वो मरने को तैयार है, Please you come. आओ। But Jesus replied and said to यीशु ने them, कहा, so when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Amen. तो यहाँ क्या लिखा है 4 में? ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। Jesus was telling to them face to face, this sickness is not unto death, यीशु को साफ-साफ ऊपर ही बोल रहे हैं कि ये बीमारी मृत्यु तक नहीं जाएगी, for the glory of God. लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए Your brother will be healed. तुम्हारा भाई चंगा होगा। But Martha said to Jesus, और उन्होंने कहा, let's go to 38 to 44. Pay attention, you will come to understand what is Palm Sunday. Then John chapter 11 from 38 to 44. यूहन्ना 11 का 38 से 44 तक पढ़ते हैं। लाजर का चिल्लाया जाना। यीशु मन में फिर बहुत सी उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। Amen. Then Jesus again groaning himself came to the tomb. He said, Jesus reached there in the tomb. यीशु वहां पहुंच गए। For how many days? Before Jesus reached, यीशु के वहां पहुंचने से पहले ही Lazarus was even smelling it. लाजर को तो मरे हुए 4 दिन उनके शरीर से बदबू आ रही थी। He has to walk for days before he will reach Lazarus. लाजर तक पहुंचने के लिए पर यीशु ने काफी दिन लगा दिए। That was when Jesus cried. तो यीशु लेकिन रोए भी। Jesus walked by himself. यीशु खुद वहां गए।
And they said, when the reason everybody was against Jesus, why you didn't come on और time? जब यीशु वहाँ पहुंचे तो लोग बोल रहे थे यीशु मसीह समय पर क्यों नहीं आए? If you came on time, my brother would have अगर that. समय पे आता तो मेरा भाई बच जाता ना। But Jesus knew where he was और going. यीशु को पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। Jesus asked, do you believe that the Son of Man can't do this? यीशु ने कहा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि परमेश्वर का पुत्र ये कर सकता है? They were talking about the resurrection day. तो हम बात करते हैं पुनरुत्थान के दिन। Jesus was talking about right now. यीशु अभी की बात कर रहे हैं Still the faith to understand Jesus. कि विश्वास जो यीशु को जानते हैं। Jesus said, can I were able to do this? यीशु चाहते थे कि हम ऐसा करें। Jesus said, take me to where Lazarus was buried. यीशु ने कहा चलो मुझे लेकर चलो जहाँ लाजर को दफनाया है। And Jesus prayed. और यीशु ने प्रार्थना की। And he said, Lazarus, उनका लाजर come forth. आगे आ जा। And Lazarus arose from the dead. और जो लाजर भी था वो जिंदा And हो गया। everyone was marveled. They were clapping hands. और हर कोई तालियां बजा रहा है। They believe in Jesus. वो यीशु में विश्वास कर रहे हैं। So many miracles that Jesus did. यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए। But Jesus said, यीशु ने कहा if I could go into house to house. अगर मैं घर घर जाऊं, Many people wanted to reach me, they couldn't reach me. बहुत सारे लोग हैं जो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं पर It पहुंच took नहीं पा some रहे हैं। people 40 days, 40 nights to come to me. उन्हें करीबन 40 दिन लग जाएंगे मुझ तक पहुंचने के लिए। Satan is all over the place, शैतान तो हर जगह पर कार्य कर रहा है, tormenting my people. मेरे लोगों को परेशान कर रहा है। But right now, पर अभी I want to hand the power of Saul to each and every son and daughter of mine living in the present world. पर जो भी दुनिया में जी रहा है मैं अपने हर एक बेटा और बेटी को सामर्थ्य देना चाहता हूँ Instead of every crowd rushing to see me, कि हर एक भीड़ मुझ तक पहुंचना चाहती है and now I want to give every of my sons and daughters the sword of fight. और मैं अपने बेटा और बेटी को सामर्थ्य देना चाहता हूँ कि वो लड़ने के लिए तैयार है। The sword to destroy Satan wherever they are. जहाँ पर भी वो वहीं पर रह के वो शैतान को मार सके, मैं ऐसा कुछ अपने बच्चों को देना चाहता हूँ The sword that even if I am not there with my name, they can destroy कि everything. ताकि अगर मैं उनके साथ देह के रूप में ना भी खड़ा हूँ वो अकेले भी उन चीजों को खत्म कर सकते हैं। Even if I'm not there, by calling that name, by giving that sword, अगर मैं वहाँ नहीं भी हूँ लेकिन वो लोग जो मेरा नाम लेंगे उससे भी उन्हें विजय मिल जाएगी। what I did, जो मैंने किया, I made the blind to see. मैंने अंधों को I देखना raised सिखाया, Lazarus. मैंने इस लाजर को जिंदा किया। You don't need to call me anymore. अब तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। It means that Satish can do that. इसका मतलब सतीश भैया भी कर It सकते means हैं, that Pastor Kamai can do पास्टर it. क्या भी कर सकती है, It means that Sister Santi can do it. सिस्टर शांति भी कर सकती It है। means that anyone can do it no matter where you are. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पर है, कहीं पर भी कुछ भी कर People सकते are हैं। using that word wherever they are in the world today. लोग यीशु के नाम को इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर भी वो जाते हैं। You don't need to go and visit Jesus in Rome. आपको कमरे में जाके यीशु को ढूंढने की You don't जरूरत need नहीं to है। go to Capernaum to see Jesus. आपको यीशु से मिलने के लिए कफरनहूम जाने की जरूरत नहीं है। That was the foundation that Jesus laid today. यीशु ने वही नींव आज तक के रखी हुई है। Let's see the first fruit of what Jesus Christ आप said. देखिए यीशु ने पहला फल क्या दिया। When Jesus laid this foundation, जब यीशु ने नींव रखी was on Palm Sunday. वो पाम संडे था। That was the day that analog expired. आप देखिए वहाँ पर यीशु का अंदर रहना बंद हो गया और अब वो हर जगह से That खुल was गया। the day Jesus introduced the new model. अब उन्होंने नई तरह से अपने आप को दिखाना शुरू That किया। was the day Jesus switched to technology. आप देखिए यीशु से टेक्नोलॉजिकल मतलब ऑनलाइन हो गए। That was the day Jesus moved from the physical body. यीशु उस दिन से शरीर के ना होने का आत्मा के हो He गए। said, now I can be as much people as I can through the power of the तो वो Spirit. कहते हैं कि अब से मैं आत्मा के सामर्थ्य से कहीं पर भी किसी तक भी पहुंच सकता हूँ। With the power of the physical body, जब बस शरीर में सामर्थ्य होता है। Jesus will never enter any of us one by one. आप देखिए यीशु मसीह हमारे जीवन में एक एक करके नहीं आ सकते। But with the power of the Spirit, शरीर में रहकर तो नहीं आ सकते लेकिन आत्मा में होगा। Jesus can multiply 10 billion people on earth. यीशु 10 बिलियन लोगों को भी परमेश्वर में बदल सकते हैं। If the population of the world is 20 billion, अगर पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो जनगणना है 20,000 Jesus can multiply 20 billion spirits. 20 बिलियन आत्माओं को भी यीशु बदल सकता That है। means the power that he has given only himself when he have the physical body, he can give it to 20 billion people living on earth. आप देखिए सीमित तो हमेशा अपने शरीर से रहते हैं लेकिन यीशु ने आत्मा में होकर कितने लोगों को बचाया। And this is the day Jesus laid that और foundation. यही आज का वो दिन है जब यीशु ने इन चीजों की शुरुआत
शुरुआत करी। When Jesus rose from death, जब यीशु मरे हुए जिंदा हुए, the manifestation of the digital world began. आप देख रहे हो वो पुराना रहने का तरीका था सब खत्म। Let's go to Acts of the Apostles हम chapter 1. खोलते प्रेरितों की किताब पहला अध्याय। You understand what I'm saying? Acts of the Apostles chapter 1. Let's go 1 to 11. Acts of the Apostles. Acts 1 from 1 to 11. प्रेरितों की किताब एक अध्याय 1 से 11। Acts of the Apostles, Acts 1 to 11. हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों के जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर फिर उठाया न जाए। उसे दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को और जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातों को कहता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस आज्ञा न को पूरा होने की बाट जोते रहो, क्योंकि जिसकी चर्चा में तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। 6 अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल के राजा फेर देगा? उसने उनसे कहा, ये उन समयों या कालों को जानना जिसमें पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारे काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम के सारे यहूदी और सामरियों और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखें छुपा दिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु तो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया है, जिस रीति से तुम्हें उससे फिर स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। Amen. It's time Jesus Christ began to use the power of the Holy Spirit. तो ये समय है जब यीशु ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का इस्तेमाल शुरू कर दिया। They said the former account, he said, Amen, all tearfulness. आप देखिए कि पुराना जो इंसानों का जो हिसाब किताब Of था, all that Jesus began to do. जो भी यीशु करना चाहते थे, That's what he said. He said until the day in which he was taken up, after he, through the Holy Spirit, had given commandments. The power of the Holy Spirit began to आप work. देखिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य काम करने लगा। Jesus began to distribute the power of the Holy Spirit. यीशु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बांटने लगा। Verse 8 said it all. He said, but you shall receive power. तो यहाँ लिखा 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य When the पाओगे। Holy Spirit has come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, verse 8, you shall receive the तुम्हें power. सामर्थ्य मिलेगा। This was the beginning today, the Palm Sunday. तो पाम संडे से इन चीजों की शुरुआत होती है। That was the fruit, that was the plan of Jesus. ये यीशु की योजना थी He said, you shall receive the power. कि तुम सामर्थ्य को पाओगे, Pastor Kamai can receive the power to heal anyone. कि जो पासवान हमारी कमाइयाँ उनके पर भी सामर्थ्य किसी को You दिखाई can देगा। come and somebody will touch you and you'll be healed. कोई आप खड़े होंगे, कोई आपको छुएगा और चंगा हो जाएगा। This was the day that the foundation was laid. यही वो दिन है जब नींव रखी गई। Jesus transformed from the body to the Holy Spirit. यीशु ने शरीर से आत्मा के हो गए। The Bible says you shall receive power when the Holy Spirit has come बाइबल upon कहती है you. कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य And को you shall पाओगे। be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the और earth. यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में There was no limitation. गवाह हो गए। There was no limitation of कोई this सीमा नहीं power. थी। From Samaria to Judea, all over the earth, दुनिया के अंदर कहीं पर भी you will possess the power. आपके अंदर सामर्थ्य होगा। As long as you believe in the name of जब Jesus. तक आप यीशु के नाम में विश्वास करते That was the रहे, power of this Palm Sunday. यही पाम संडे का सामर्थ्य है। So this was the day of foundation. ये वो दिन है जब नींव रखी गई This is the day the Holy Spirit visited कि us. पवित्र आत्मा उस दिन उनसे मिली। That's why I call it God's visitation. तभी कहा जाता है कि परमेश्वर का विजिट करना। The Holy Spirit of God visited the earth तो पवित्र आत्मा को कहा जाता है कि शायद वो जीवन में धरती के ऊपर रहती to है lay the foundation of the Holy ताकि वो Spirit. नींव बना के रखे। That today the soul, the power, the armor will be given to us. आज आप देखिए जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के हथियार भी हमें मिलते हैं। So we should not be wondering looking for a physical तो Jesus, हमें जो शारीरिक रूप से यीशु को नहीं ढूंढना है, but believing
that the Holy Spirit is लेकिन there, विश्वास करें कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, believing in the Spirit of Jesus कि Christ, परमेश्वर की आत्मा कार्य करेगी, we can stay in our homes, हम कह सकते हैं अपने घरों में, we can stay in our offices, हम अपने ऑफिस में कह सकते हैं, we can stay in KK drivers, हम कहीं पर भी कह सकते हैं, we can stay in our private cars, हम अपनी गाड़ियों में भी कह सकते we हैं, can call upon His name wherever we are. हम यीशु मसीह के नाम को कहीं पर भी बुला सकते हैं। When we are walking, when we are eating, जब चल रहे हैं, खा रहे हैं, we don't need to dress and start to see where we are going. ऐसा नहीं कि कपड़े पहनने की जरूरत है बहुत सुंदर सुंदर कि ताकि हम समझ पाए कि हम कहाँ We जा don't रहे हैं। need to leave our families and travel thousands of ways to look for Jesus. हमें अपने परिवार को छोड़ के ये नहीं कि यीशु खोजने जा रहा है। Jesus Christ made Himself visible. यीशु ने अपने शारीरिक बनाया अपने आप को Jesus made Himself affordable. और अपने आप को बनाया कि ताकि हर कोई वहां तक पहुंच पाए। Jesus made Himself cheap. यीशु ने अपने आप को बहुत सस्ता बनाया। You don't need to worry whether you have money or not. तो अगर पैसा हो या ना हो चिंता मत करना। You don't need to book any airplane to fly to see तो प्लेन Jesus. पे जाने के लिए यीशु से मिलने के लिए किसी एयरप्लेन में भी नहीं जाना है। You don't need ship to go and see Jesus. आपको कुछ भी पाना नहीं है यीशु तक जाने के लिए। Jesus became cheap. यीशु खुद गरीब बन गए। Jesus became affordable. यीशु ऐसे अवेलेबल हो कि कोई भी मुझ तक पहुंच सकता है। You don't need to stay in hotel days to sleep before you see Jesus. हमें हफ्तों तक जागने की जरूरत नहीं है यीशु से मिलने के लिए। Some people stay in Hyderabad or London when they want to come to the capital for something. They spend money in hotel waiting for days. They are lying, they are torn. कई लोग जो अलग प्रदेशों में रह रहे हैं भारत में जब वो आते हैं कहीं पर तो महंगे होटल्स के अंदर रहते हैं। Jesus abolished all protocols. यीशु ने कहा कि इसे मत करो। Everything made simple. हर एक चीज साधारण बना लो अपने जीवन में। You don't need to pay more to see Jesus. यीशु तक पहुंचने के लिए ज्यादा पैसे You खर्चने की stay जरूरत in your नहीं room, you cry. कि अपने कमरे के अंदर रोने की जरूरत नहीं। You are walking, you are praying. आप चल रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं। Wherever you sit, you talk to आप जहाँ Jesus. बैठे हैं वहाँ यीशु से बात कर रहे हैं। You lying down on your bed, you talk to Him. आपका जीवन आपका आप लेटे भी यीशु से You बात करें। kneeling down, you talk to Jesus. आप घुटनों पर हैं तो ऊपर यीशु से बात करें। There is no protocols again. कोई भी रीति रिवाज है ही नहीं। There is no walking. कोई भी लड़ाई नहीं है। The blind man, imagine. क्या आप सोचो तो अंधे व्यक्ति को They were blind, they couldn't see. वो अंधे वो देख नहीं सकते In order to find Jesus, कि यीशु कहाँ है वो सब हाथ हिला रहे it हैं। took them 2 months. क्या पता उन्हें ढूंढने में यीशु को लग गए हो। वो चलते होंगे Morning and night without food. बिना पूरी और बिना खाने के निकालते होंगे। Jesus felt pity for us. यीशु को हम पर दया आई A king in the earth will not do it. और अंत में क्या हुआ? If you're a king and people are dying for you, people think they are everything. कई लोग सोचते कि अरे हम राजा हैं, लोग मर रहे हैं, वो छुटकारा हो गया। People like it when there is soldiers guiding them, the prime minister close all the doors, close everywhere the prime minister is coming. तो लोग सोचते कि अरे जहाँ से भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहा है वहाँ पे मत जाओ लेकिन अपने आप को घेर लो। The human pride. जो इंसानों का घमंड है। Do you think I am everything? आपको क्या लगता है कि सब कुछ है मेरे पास? Even people want everybody to take permission from them before they leave. अगर आप लोग कि नहीं हर बंदे को मुझसे पूछकर ही घर से बाहर निकलना है। Jesus would have done that. यीशु ने ऐसा नहीं किया। He would have people come, they would get tickets. ये नहीं कि मुझसे मिलने के लिए लोगों को टिकट खरीदना They पड़ेगा। will pay money to see him. मुझ तक पहुंचने के लिए उन्हें पैसे खर्चने He पड़ेंगे। can heal sickness, he will charge you any amount he wants. वो आपको चंगाई दे सकते हैं बिना किसी पैसे के। People will use Jesus to make money. लोग यीशु का भी इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए। Some deputy Jesuses, they will want you to come to them before they will direct you to Jesus. तो हर कोई यीशु तक पहुंचने से पहले ही उनको बताया जाता है कैसे कैसे जाओ। People who are working in prime minister office, if you want to see prime minister, you come to them. अगर आप राष्ट्रपति के साथ काम करते हैं तो आप उन्हें बोलेंगे कि आज आ जाओ। But Jesus abolished those things. यीशु ने चीजें खत्म कर दी। I am cheap, I am free. उन्होंने बोला मैं बहुत साधारण बहुत I सस्ता will हूँ। vanish with my physical body मैं अपने शरीर से ही इसको समाप्त करके जाऊँ। because it causes my people. क्योंकि मैं लोगों को It परेशान makes कर रहा my हूँ। people not to reach me, they want to reach मेरे me. लोग चाहते हैं कि जहाँ पहुँचना चाहिए मुझे It वहाँ makes my पहुँचना। people suffer before the मेरे day लोगों hands को on me. परेशान कर रहे हैं। But from today I make it लेकिन आज easy. से हम इसको आसान कर देंगे। They can reach me through the power of the वो Holy मुझसे Spirit. पहुँच सकते हैं परमेश्वर के वचन के। They can reach me by calling on them Jesus. सिर्फ यीशु के नाम को पुकारने के द्वारा ही हम The उसे same मिल thing जाएंगे। I do with my physical body, I hand them over to कि themselves. जो भी चीजें मैं अपने देह में होकर करता हूँ उन सबको मैं यीशु के हाथ में Use it निकाल दूंगा। and heal yourself. आप खुद अपने को चंगा कर Use it लेंगे। and set yourself free. शैतान आप खुद ही ठीक कर देगा। Use it and liberate your आप generations. आराम से अपनी चीजों को आराम से जी पाएंगे। All spirit will be subject to you. आपकी गलत आत्माएं आपसे अलग हो जाएगी। You don't need my physical presence again. आपको शारीरिक रूप से यीशु की जरूरत नहीं पड़ेगी। I live in every of you. परमेश्वर कहता है मैं तुम सब में जीता हूँ। That
was what Jesus led today. यीशु ने आज ये बताया। So today is a very vital day. तो आज एक बहुत जरूरी दिन है। It's the day that Jesus Christ marks the beginning of an end. ये वो दिन है जब यीशु ने शुरुआत करी अंत की। That is why it's called a Palm Sunday. इसलिए इसको पाम संडे कहा जाता है। It's a blessed day. ये एक आशीषित दिन It's होता a है। beautiful day in our बहुत life. सुंदर दिन होता है। It's a day worth sacrificing to come. ये वो दिन है जब यीशु कहता है कि बलिदान तो देना It's ही a पड़ेगा। day that you have to leave a palm and put in your home. अगर आपको अपने जीवन को बड़ा करना है तो आपको बलिदान करना ही पड़ेगा। Because it signifies the day that Jesus visited you. क्योंकि ये वो दिन दिखाता है कि जब यीशु हमारे लिए मरने It चले गए। signifies the day that you accepted कि Jesus. जिस दिन आपने यीशु को अपनाया वो दिन It's the day that Jesus marks a new thing in your life. तो ये वो दिन है जब यीशु समझते हैं कि आपसे आप नए हो गए। It's a new beginning. एक नई सृष्टि, It's a new beginning. नई सृष्टि। Let's see before I close खत्म करने से पहले the first fruits पहला फल of the digital Jesus. जो पुराने यीशु के थे। Acts of the Apostles chapter 3. आप खोलें प्रेरितों की किताब 3 अध्याय। After this I will close. Acts of the Apostles chapter 3 verse 1 to 10. Acts 3. Acts of the Apostles chapter 3 verse 1 to 10. हम खोलते हैं प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 1 से 10। Acts 3 1 to 10. पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के उस समय मंदिर में जा रहे थे और गलील और लोग एक जन्म से जब लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर में उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना के मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना से साथ कहा, उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, मेरी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह जो देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बंध दिए। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। तब सब लोगों ने उसे चिल्लाते फिरते हुए परमेश्वर की स्तुति करते देखा। उसको पहचान लिया कि वे करते देख उसने पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह बहुत अचंभित और चकित हुए। Amen. A lame man was healed. आप देखिए एक लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया। Was it Jesus? क्या वो यीशु था? Who healed the lame man? किसने उस लंगड़े व्यक्ति को ठीक किया? Was it Jesus? क्या वो यीशु था? Who healed them? Who healed them? Was it Jesus? क्या यीशु ने चंगा किया? Who raised people from the dead? Was it Jesus? किसने किया चंगा? It was Peter. शिमोन पतरस ने It was John. और यूहन्ना ने। You and I आप और मैं भी began to do that miracle हम भी चमत्कार कर सकते हैं that Jesus Christ was doing. जो यीशु ने किया, जो शिमोन पतरस ने किया। Somebody who was crippled began to वो walk. इंसान जो लंगड़ा है वो चलने लग गया। In those days, they expect it was Jesus that would do it. तो लोगों को उस समय लोगों ने सोचा यीशु ही करेगा, It was Peter लेकिन वो शिमोन पतरस था that did it. जिसने किया। What did they use? क्या उन्होंने इस्तेमाल किया चंगा The करने के Bible लिए? said, बाइबल बताती है, they said, उन्होंने कहा in verse 6, छठे वचन में, Peter said, शिमोन ने कहा silver and gold I do not have, कि सोना और चांदी तो मेरे but पास what नहीं है, I do have I'll give you. पर मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूँ। In the name of Jesus Christ यीशु of मसीह Nazareth, नासरी के नाम से rise up and walk. चल और फिर He used the sword that Jesus left. यीशु ने जो छोड़ा था उसने उसको उठाया, He used the power of the Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा का इस्तेमाल किया। Jesus was accessible in the spirit. यीशु तो थे आत्मा में हर किसी के पास, There was no crowd. कोई भीड़ नहीं थी। What Jesus left जो यीशु ने छोड़ा was carried out by men. वो इंसानों ने इस्तेमाल किया। Peter, James, John, शमौन पतरस, यूहन्ना और याकूब, Paul. पौलुस, They were moving everywhere. वो हर जगह जा रहे थे। They were in Jesus. वो यीशु के साथ थे। They never had the body of Jesus. यीशु का शरीर तो नहीं था, But they were doing the same thing that Jesus did. लेकिन जो यीशु ने किया वही उन्होंने भी किया। Today was the foundation तो आज ही वो नींव है of this triumphant entry. एक विजय प्रवेश की। They call it the triumphant वो entry. विजय प्रवेश कहते हैं। They move from the physical to the spirit.
वो देखते हैं शारीरिक से आत्मिक हो जाते हैं। This is where Jesus Christ digitalized everything. आप देखिए यहाँ पर जो यीशु कुछ ही लोगों के संपर्क में आ पाते थे, अब वो सबके संपर्क में आ पाए हैं। He made everything. He gave उन्होंने हर चीज everybody बहुत ही आसान कर दी। your login ID and password. आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया है, You need to create them. बस अब उसको बनाना है, You need to log in. अब उसे लिखना है Get online. You access और Jesus. ऑनलाइन हो जाएंगे तो यीशु तक पहुंच That पाएंगे। is all you needed to do. आपको यही करना है, Create your own password ID. अपना खुद का आईडी पासवर्ड बनाएं You log in. और लॉगिन करें You access Jesus. और आप यीशु तक पहुंच पाएंगे। That is what today जो इस दुनिया में आज is the day that Jesus made that for जो you. यीशु ने हमें कहा, I have to leave you here हम यहाँ आपको छोड़ेंगे as we are celebrating the Passover. क्योंकि आज हम पाप खंड मना रहे हैं। Jesus has made himself available to us. यीशु ने अपने आप को हमारे In a very simple तक way. बहुत ही अवेलेबल किया। It's not left for you. अब ऐसा नहीं है, You have ID. ये आपके ऊपर है। अब क्या आपके पास आईडी है, You have password. पासवर्ड है, Have you logged in क्या आपने लॉगिन किया है to connect to the power of Jesus? कि आप यीशु के सामर्थ्य तक पहुंच पाए। You see people use that name Jesus आज Christ. लोग यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करते हैं। You think, oh, it's for pastors. No? आपको कह रहे हैं ये पास्टर प्रार्थना You करेंगे ना think तो also it's for some certain people. आपको लगता है कि ये अभिषेक कुछ ही लोगों का है Because they have created their own idea of password. क्योंकि उन लोगों ने अपना ही आईडी पासवर्ड बना लिया And you thought it's for them only. और आप सिर्फ उसी बारे में सोचते हैं। Jesus has made it general. यीशु ने बहुत सारे जनरल बनाए, From east to north, from south to west. पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, From every people, हर जगह पे, from every race, हर जगह पर from every gender. और हर तरह जाति पर Jesus has given us यीशु ने दिया है that power. वो सामर्थ्य From today, आज से। what are you waiting? पर When you go to pastor to pray for you, जब पास्टर के पास जाए प्रार्थना when के you लिए go to the bishop to pray for you, या बिशप के पास जाए when you be looking the physical Jesus, और आप ढूंढ रहे शारीरिक यीशु आ जाए, He's there in you. वो आप में है, He's there in us. Amen. He's everywhere. वो हर जगह पर है। We have connected to Him. उनके पास सामर्थ्य है। Get your data, अपना डाटा ले, log in, लॉगिन करें, get your ID, आईडी ले and put your password. और अपना पासवर्ड You डालें। will connect to Jesus. अब यीशु का कनेक्ट हो That पाए। was what today means for us. यही आज का वचन हमारे भाई को This देना is the चाहते day हैं that Jesus Christ made this available कि for आज us. ही वो दिन है जब यीशु ने हमारे लिए सब कुछ करना शुरू किया। Let us use it. तो यीशु के नाम का Let इस्तेमाल us करें use it judiciously. और परमेश्वर तक पहुंचने को Let the day that God visited you, तो आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपसे बात करे, God visitation. परमेश्वर आपसे बात करे, Accept God today. तो उसे हम अपनाएं, Open your heart for God. अपना दिल खोले परमेश्वर के And लिए use this opportunity to serve Him. और वो आपको बचाने का सामर्थ्य देगा He will make everything possible in your life. और हर एक चीज संभव करेगा अपने जीवन में। If you open your heart today अगर अपना घर आप खोल लेते हो and welcome Jesus, और यीशु को बुलाते हो, if you are blind, अगर आपने किया you will see. आप देखेंगे, If you are lame, अगर आप you will walk. अगर आप देखेंगे If you are सीखेंगे सीखेंगे तो You will करेंगे be free. और अगर दर्द में तो Because मुक्त हो जाएंगे today is the day of क्योंकि visitation. आज ही वो दिन है जब परमेश्वर आता है। Let us go back to our drawing table तो अपने ड्राइंग टेबल पे जाएं and fix what was left there. और देखिए क्या चीजें रह गई And we'll find out our life is a perfect life. और आप देखेंगे कि मेरा जीवन We सच में don't बहुत need to सुंदर run here and there है। हमें भागने to की जरूरत नहीं है, do it. It is here with us. ये हमारे पास As है। we do it, may His जैसा power हम ये करते हैं continue to bless us. तो परमेश्वर हमें आशीष Jesus देता है। Christ's mighty name we यीशु pray. के सामर्थ्य वाले नाम में मांग लेते हैं, आमीन।